हेलो। Yes, good afternoon, students. How are you all? कैसी चल रही है लाइफ? सर काफी बोरिंग लाइफ चल रही है। ओहो हो, सबकी लाइफ में वही है। Especially in your age, it's very difficult to stay in home. But something कुछ पॉजिटिव इसमें हम ढूंढ के कुछ एक्टिविटी हम डेवलप कर सकते हैं. ओके, गुड. नाउ yesterday we had solved I think question number 2020. बाकी स्टूडेंट बेचारे इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं. ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 21. सो ऋषि का साथ है तो क्या बात है. तो ऋषि, क्वेश्चन 21 कैन यू प्लीज रीड? Yes, sir. यस प्लीज. Kareem, Rahman, and Navel are partners sharing profits in the five is to their balance sheet of 2021 as for. Okay, so they are sharing the profits in the ratio of 5:3. This is our old ratio. करेक्ट. नाउ मुझे बताओ इन सब में से कौन से दो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है इन सभी में से? फर्स्ट इज जनरल रिजर्व, जो हम जनरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अदर इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पहले आपको कंपेयर करना होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू. लुक हियर, इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू है 90,000 एंड बुक वैल्यू है 1 लाख. तो कोई मुझे बता पाएगा इन्वेस्टमेंट में बेसिकली लॉस कितना है? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस. सो लॉस इज 10,000. तो क्या करेंगे, ये जो रिजर्व है, ओके, ये रिजर्व 30,000 में से 10,000 हम इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे एंड बाकी का 20,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स. अच्छा, डेबिट साइड पर एक और ऐसा रिजर्व है जो छुपा हुआ है, जो आपको मुझे बताना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. विच इज दिस रिजर्व जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो एसेट साइड में है, जनरली एंड में दिया जाता है. विच इज दैट रिजर्व? हेलो,
मुझे बताइए एसेट साइड पर एक रिजर्व है विच इज नेगेटिव रिजर्व, इट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, थोड़ा ध्यान रखिए एंड जब क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा अलर्ट रहिए। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट will also be distributed between the partners. Now let's see what they have given. They decided to share profits equally with effect from 1st April 2021. So new ratio is 1:1:1. And there are few adjustments which they have given. So end में देखते हैं what we are supposed to do. We are supposed to pass the journal entries and prepare the revaluation account. So we need to do two things. Journal entries भी pass करनी है, revaluation account भी बनाना है. Okay, so let us solve this question together. एक काम करते हैं, ये question में add कर दो. Also prepare partners capital accounts and balance sheet after change in ratio. Balance sheet after change in ratio. And this question should be marked as important. It is easy, but it is important. Okay. So let us solve this question. It is question number 21. तो सबसे पहले I will prepare revaluation account. You need around 10 lines for revaluation account. So around 10 lines के लिए you will prepare revaluation account. After preparing revaluation account, we will prepare partners capital accounts. There are 3 partners, so it will be bit lengthy. So we will prepare the account column wise. There are 3 partners. Again here around 7 or 8 lines. 10 lines के लिए account बना सकते हो. And make 3 columns for 3 partners. Name of the partner Karim, Rehman, Navel. Karim, Rehman, Navel. So debit and credit. And in revaluation also, don't forget to write debit and credit. And ये क्वेश्चन में मैं आपसे बैलेंस शीट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो you will have to write बैलेंस शीट. प्लीज नोट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है 1st April 21. तो बैलेंस शीट इज एज ऑन 1st April 2021. ब्रैकेट में आई विल राइट आफ्टर change in profit sharing ratio. This is a full-fledged question. ये question आपने समझ लिया तो this is going to be very easy for you.
So in balance sheet, you require around 75% of the page, and 2 column, inner column and outer column is required. You can write like this: liabilities, amount, assets, and amount. So you can raise your hand if you have prepared this format, and इसके बाद journal भी pass करनी है. So I will write journal of measures. Partners का नाम ही लिख देते हैं, करीम, रेमान and Navel. So for journal entry also you require almost 1.5 page. So prepare the format accordingly. 1.5 page is needed along with date. So चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. आई होप यू आर विथ मी. सो सबसे पहले वी विल गो थ्रू the balance sheet and whatever reserves are there that we need to distribute. For example, we have general reserve. एक बार देख लेते हैं जनरल रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जनरली दे डोंट गिव. तो ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में. सो सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्री होगी. In journal you will write 1st April 2021. ये मैं जर्नल रिजर्व सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एंट्री क्यों पास हुई है. सो जनरल रिजर्व कैंसल कर दो, डेबिट कर दो. अमाउंट इज 60,000 एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स करीम, रेमान, नवेल 532. टू करीम का कैपिटल अकाउंट 532, 5/10 यानी आधा इसको मिलेगा. टू रेमान का कैपिटल अकाउंट 3/10. 10 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18 एंड इसको जाएगा 6 2 जा 12. टू नावेल्स कैपिटल अकाउंट 2/10 and narration will be being general reserve distributed. That's it. अच्छा, आफ्टर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व, एक और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सो 1st April 21 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैंसल कर दो. वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट. कितना है? 30,000. लेकिन उसमें लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट में, रेडली रिड्यूस हुई है 10,000. सो 30,000 टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू
माइनस मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू थी 1 लाख बैलेंस शीट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वाज 90,000, सो 10,000 से इन्वेस्टमेंट कम होगा एंड क्रेडिट विल गो टू द पार्टनर्स, टू करीम का कैपिटल अकाउंट 532 टू रहमान का कैपिटल अकाउंट 3/10 एंड टू नावल का कैपिटल अकाउंट 2/10 एंड प्लीज नोट ये 30 माइनस 10 सो इंटू 20,000 करना है, सो 2,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो मिलेगा 2 5 जा 10,000, 2 3 जा 6,000 and 2 2 जा 4,000. So debit and credit will get equal and narration will be being investment fluctuation reserve distributed. So we have distributed investment fluctuation reserve. अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे ये है, आफ्टर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस टू रिजर्व्स, नेक्स्ट कौन सा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इट इज ए नेगेटिव रिजर्व। ओके, ये डेबिट बैलेंस है तो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, सो विल डेबिट पार्टनर्स। सो 1 अप्रैल 21 ये है मेरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसको मुझे कैंसिल करना है। So I will debit partners करीम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन रहमान का कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड नावल का कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट वी गो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट suspense account. Value was 5,000. 532, 5/10, 3/10, 2/10. Okay, so if we divide by 10, we get 500. 500 to 1,000, 503, 1,500, 500 into 5, 2,500. And we will pass narration being advertisement suspense account distributed. So raise your hand if you are clear about how to distribute the reserves. सबसे पहला काम reserves को distribute करना है, okay? And एक और चीज है कि in this question we are also preparing partners का capital account. तो मैं इस journal entries की effect जहां पर होगी मैं दूंगा। तो in partners capital account first of all we record the opening balances. Capital account credit side में we record opening balances, okay? So if we are preparing partner का accounts तो credit side में लिखना पड़ेगा by balance brought down, ये है opening balance, and let us record the opening balance of partners
it is 250, 250, 200, 250, 250 and 200. So we have recorded capital account. Okay. Now जो भी जर्नल एंट्रीज हमने पास की है वो जर्नल एंट्री की इफेक्ट देनी पड़ेगी अगर पार्टनर्स अकाउंट इज इन्वॉल्व. फॉर एग्जांपल यहाँ पर यू हैव क्रेडिटेड द पार्टनर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व. सो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है 30, 18 and 12. So I will write 30, 18 and 12. एंड डेबिट क्या किया था हमने? जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को. नेक्स्ट जर्नल एंट्री विच वी पास्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. हियर आल्सो वी आर क्रेडिटिंग द पार्टनर्स. तो 10, 6 and 4 पार्टनर्स को क्रेडिट करना है. 10, 6 and 4. So I will write here 10,000, 6,000, 4,000 और डेबिट क्या किया था हमने? इन्वेस्टमेंट रिजर्व. ओके, सो इसकी भी हमने इफेक्ट दे दी है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने यहाँ पर क्रेडिट किया है. तो in balance sheet also you need to give effect of this. So in balance sheet asset side I can write investment. Investment पहले 1 लाख था. So inner column 1 lakh. But I will write like this: less revaluation. Investment में market value कम थी. ओके, सो 10,000 से इन्वेस्टमेंट हमने कम कर दिया. सो इट मीन्स दैट इन आउटर कॉलम वी शुड शो द मार्केट वैल्यू. सो इन्वेस्टमेंट क्यों मैंने कम किया? बिकॉज प्लीज नोट इन जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट को हमने क्रेडिट किया है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम की है 10,000 से. तो जितनी बैलेंस शीट में वैल्यू है वी नीड टू डिडक्ट 10,000. So I hope this is clear. So these two journal entries already are given effect. Journal reserve, investment fluctuation reserve distribute हो गया है. Now advertisement suspense को distribute करना है 2,500, 1,500 and 1,000. So partners को debit करेंगे 2,500, 1,500 and 1,000. लिखेंगे to advertisement suspense account. To advertisement suspense account. So this is also taken care of. So raise your hand if you have done so far. If you are along with me, इतना note हुआ हो तो raise your hand. Okay, good. So now let's move ahead. अब मैं आपसे पूछूंगा. ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग रखते हैं. सो यहाँ पर आदित्य, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%, वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, ये मुझे बता दो. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%, प्रॉफिट या लॉस? यस, परफेक्ट. तो इट इज लॉस. तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड लिखेंगे. देन चलिए अभी कर लेते हैं. बिल्डिंग को 5% से डिक्रीज करना है, इट इज अवर लॉस. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट एंड 5% 3,50,000 का 5% of 3,50,000.
10% मीन्स 35,000, उसका हाफ कर दो तो 17,500. ओके, सो वन जर्नल एंट्री यू हैव ऑलरेडी पास्ड. सम थोड़ा लेंदी है, सो यू ऑल्सो नीड टू पास जर्नल एंट्री. एक काम करेंगे, जर्नल एंट्री आई कैन कंबाइन, लॉस वाले का एक साथ मैं एंट्री पास कर दूंगा. ओके, सो second question to Ans, value of machinery increased by 5%. तो Ans, whether it is profit or loss? Machine value to be increased. Yes, it is a profit. So I will have to write on credit side by machinery account and 5% of 2,40,000. So 10% is 24,000, उसका हाफ कर दो तो it will be 12,000. That's done. ये जर्नल एंट्री ही हमने पास की है, but I will record separately. Next question, भूमिल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है. डेटर्स के ऊपर कुछ पैसे कलेक्ट नहीं होंगे, प्रॉफिट है या लॉस है ये? You need to create the provision. It is your loss. Okay, 5% पैसे शायद नहीं आ सकते हैं. So डेबिट साइड पर लिखना होगा टू प्रोविजन फॉर doubtful debts. 5% on debtors. Debtors are 50,000. तो 5% of 50,000, 10% होता है 5,000, उसका हाफ कर दो. So 2,500. So I hope this one is also clear to you. Okay. Then next question, Manmeet. Motorcycle valued at 20,000 was unrecorded and now to be recorded. तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? एक एसेट आपके बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था. यस, परफेक्ट, वेरी गुड. वन एसेट व्हिच वाज अनरिकॉर्डेड. देखो, एसेट अनरिकॉर्डेड है तो इट इज गुड फॉर यू, अब रिकॉर्ड कर सकते हो, एसेट बढ़ेगा. इफ लायबिलिटी इज अनरिकॉर्डेड तो नुकसान है. तो इट इज प्रॉफिट, मोटरसाइकिल की वैल्यू बढ़ानी है. ओके, सो क्रेडिट साइड में आई विल राइट बाय मोटरसाइकिल, क्योंकि पूरी वैल्यू अनरिकॉर्डेड थी 20,000, सो मुझे अब रिकॉर्ड करनी है. सो 20,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, ऋषि, आप बताओ कि क्रेडिटर्स में से 10,000 इज नॉट पेएबल, इसको राइट ऑफ करना है, रिटर्न बैक. अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या सर, रिपीट करोगे एक बार? आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल. क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है 10,000, इसको कैंसिल करना है, रिटर्न बैक. तो अच्छी बात है कि बुरी बात हाँ है? सर, अच्छी बात. यस, तो इट इज प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंड आई विल राइट बाय क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं ना, इसलिए मैं क्रेडिटर्स को डेबिट कर रहा हूं. कितना नहीं पे करना है? 10,000 नहीं पे करना है. सो दैट इज रिकॉर्डेड. नाउ गुडविल का एंड में एडजस्टमेंट करेंगे एंड यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 7, विवेक, लिखा है कि नवल जो थर्ड पार्टनर है विश टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकंस्टिट्यूटिंग एट ए रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹5,000. उसका खर्चा हुआ है 3,000, लेकिन खर्चा मिलाकर उसको पगार देना है 5,000. तो मुझे बताओ, ये फर्म के लिए, कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, लाइक सैलरी पे करनी पड़ेगी पार्टनर को,
सो फर्म के लिए ये फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। याद रखिए कि जब कोई पार्टनर रिकंस्टिट्यूशन का काम करता है, फर्म विल पे। यस। एंड अब इसमें देखो, when they have given के remuneration including expenses 5000, यानी खर्चा मिलाकर 5000 डिसाइड कर लिया था, तो भले खर्चा कम हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने डिसाइड किया था 5000, तो एंट्री पास होगी 5000 से। ओके, डिसाइड हुआ था रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस मिलाकर 5000 डिसाइड हुआ है, तो भले एक्सपेंस कम हो बट 5000 की ही एंट्री पास होगी। सो खर्चा है, इसीलिए यू विल क्रेडिट दिस पार्टनर्स का अकाउंट। तो आई विल राइट टू नवल का कैपिटल अकाउंट। कितना है नवल का कैपिटल अकाउंट में? 5000। ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन प्लस एक्सपेंस, ये है रेम्यूनरेशन, उसको काम को जो काम के लिए पैसा मिलेगा, प्लस उसका जो खर्च हुआ होगा वो। ओके, नाउ रिवैल्यूएशन की जो एंट्री बाकी है वो मैं अभी पास कर देता हूँ। लुक हियर, ये तीन जो एसेट्स है जहां पर मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था एंड तीन में डेबिट किया था, तो साथ में कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। ओके, बट बिफोर आई फॉरगेट, ये याद रखिए नवल के कैपिटल में क्रेडिट इफेक्ट देनी बाकी है। आई विल राइट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, नवल के क्रेडिट में 5000 रुपीज लिखने हैं। लेजर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स प्रॉपर देनी पड़ेगी। एंड जो एंट्री ऊपर पास नहीं हुई थी अभी हम पास कर लेंगे। 1 अप्रैल 21 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंड लेट्स सी हमने क्रेडिट में कौन से अकाउंट्स किए थे। बिल्डिंग 17,500, प्रोविजन 2,500, नवल 5000। सो बिल्डिंग 17,500 to provision for doubtful debts 2,500 and 2 Naval's capital account 5,000. So what is the total? Total is 25,000. शॉर्ट में लिख सकते हो being loss on revaluation of assets and liabilities. सो अदरवाइज आपको 3 एंट्री पास करनी पड़ती सेपरेटली सबकी। 1/4/21। नाउ आई विल रिकॉर्ड दिस रिवैल्यूएशन क्रेडिट मशीन मोटरसाइकिल creditors debit। प्लीज टेल मी द अमाउंट ऑफ मशीनरी, कितना डेबिट किया था? Was it 12?
मशीन, मोटरसाइकिल एंड प्लीज टेल मी कौन सा थर्ड एसेट था? क्रेडिटर्स 10,000. Creditors account debit 10,000 to revaluation account. So it is 42 and narration will be being profit on revaluation of assets and liabilities. लेकिन मुझे बताइए रिवेल्युएशन अकाउंट एज इट इज रख देंगे या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन पार्टनर्स? व्हाट डू फील? हेलो, सो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द पार्टनर्स. आई होप आपने रिवेल्युएशन की डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास कर ली है. एंड नाउ लेट अस क्लोज दिस रिवेल्युएशन अकाउंट. हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था क्रेडिट साइड इज हेवियर. It is 42,000. Here I have 42,000 and debit was 25,000. So 17,000 जितना वैल्यू आया है that will go to partners. So I will write to partners capital accounts. जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. पार्टनर्स नेम्स आर करीम, रहमान and Naval. Ratio is 5:3:2. तो 1700 का डबल, 1700 का ट्रिपल और ये 2 + 3 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो मिलेगा. सो इट विल बी 8500. कंफर्म करो. 17,000 टोटल. यू विल डिवाइड लाइक दिस. ओके, और ये भी एक जर्नल एंट्री आपने पास की है वो भी लिखनी पड़ेगी. मैं इफेक्ट दे देता हूं बाय revaluation account and it will be 8,500, 5,100 and 3,400. ओके, सो इसकी इफेक्ट्स हमने दे दी है. एंड वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जर्नल एंट्री में फुल फ्लेज मैंने क्वेश्चन लेंथी बनाया है. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू पास द एंट्री. So what we did, we debited revaluation account with 17,000 and we credit the accounts of partners. So to Karim, Rehman and Nawal, to Karim's capital account, to Rehman's capital account and to Nawal's capital account. Okay, and it will be being profit on
revaluation distributed 8500, 3400, 5100. Okay, अब last 5 minutes are remaining, so please rejoin the meeting. Okay, please rejoin the meeting. I am ending this meeting. Okay, so welcome back students. Now फाइनल पार्ट वाज रिमेनिंग. अब क्या करना है, बैलेंस शीट में जहां बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे. वी विल कंप्लीट द बैलेंस शीट. ओके, सो इन बैलेंस शीट लेट अस गो थ्रू द एसेट. बिल्डिंग 3,50,000 was there, but inner column, because in building we did some plus or minus. Look here, बिल्डिंग में हमने माइनस किया था 17,500. So I will write less revaluation 17,500. So if you minus this 17,500, so 3,32,500 will remain. After building, machinery, I will record, but I will go through revaluation कि machine में what was the situation. I increase the value. Please note, machine को डेबिट किया है, वैल्यू बढ़ाई है 12,000. So I will write machinery add revaluation 12,000. What was the value of machinery? 2,40,000. So value will become 2,52,000. Next was computers, but there was no change in computers. So I will write computers as it is. It's very easy. Computers as it is, no change. Investment already we have written. Debtors 50,000. So I will write debtors, but inner column 50,000, because there is provision for debtors जो हमने क्रिएट किया था. प्रोविजन फॉर डेटर्स, लुक हियर, कितना था प्रोविजन फॉर डेटर्स? 2,500. सो 2,500 से डेटर्स कम हो जाएंगे. So 47,500 value will be there. After debtors, cash in bank as it is, 10,000, 55,000. So cash
10,000, bank 55,000 as it is. Okay. Now let us come to this side. Capital तो end में मिल जाएगा from the account. General reserve नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? Because we have already distributed this general reserve. Investment fluctuation reserve भी नहीं लिखेंगे. We have already distributed. Advertisement suspense भी नहीं लिखेंगे because we have already distributed. So creditors we need to write. So I will write here first of all capital accounts. This capital account balance I will get from above. Okay, so from here I will get capital account balances for these partners, which is Karim, Rehman and Navel. And before that, below that मैं लिखूंगा creditors. But creditors का जो amount है वो inner column में लिखूंगा 90,000. And because creditors में we were having some advantage. Look here, creditors को 10,000 पे करने की जरूरत नहीं थी. So I'll write creditors 10,000 is called written off. Written off या फिर written back. Now we have cancelled this. Written off means book से निकाल दिया है 10,000. So 90,000 minus 10,000 80,000. एक एसेट रिकॉर्ड करना बाकी है. कोई मुझे बताएगा अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सा था? मोटरसाइकिल 20,000. मोटरसाइकिल पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था. इट वाज अनरिकॉर्डेड. अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा. So I will write here motorcycle 20,000. It was unrecorded. अब रिकॉर्ड कर लेंगे. Okay, so I have recorded motorcycle as well. So एक बार क्रॉस चेक कर लो. मशीन मोटरसाइकिल क्रेडिटर्स में इफेक्ट दे दी है. यस. बिल्डिंग देन प्रोविजन डेटर्स में माइनस किया है. यस. एंड इनकी कैपिटल अकाउंट्स में भी हमने इफेक्ट दे दी है. ओके, सो नाउ सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, गुडविल. उसके बाद ये क्लोज करेंगे. सो लेट अस गो थ्रू द फाइनल एडजस्टमेंट जो ऑलरेडी हम सबको पता है. गुडविल में हम कैसे एडजस्ट करते हैं. सो लुक हियर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years का परचेज, 2 years का परचेज ऑफ 3 years का प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज गिवन लाइक दिस. सो I will prepare one working for goodwill. So याद रखिए गुडविल के लिए एक एंट्री यहां पर होगी एंड आफ्टर दैट you will have to show the working. So working note बनाएंगे for goodwill. So goodwill के लिए step number 1 is average profit. तो what is average profit? लास्ट 3 साल का प्रॉफिट. 50,000 लॉस है, देन 2.5 लाख प्रॉफिट है. So 50,000 is the loss plus 2,50,000 plus 2,50,000 divide by 3. So 4.5 लाख divided by 3. So 1,50,000 is the average profit. And in step 2, we will get goodwill. Goodwill is equal to
average profit into 2 years purchase as given in the question. So 1,50,000 into 2, so is 3 lakhs. अभी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? सो आई टोल्ड यू वन थिंग, एक टेबल हम बनाएंगे लाइक दिस, रेशियो and names of partners. We will try to find gain या फिर sacrifice, and accordingly we will pass journal entry. So which are 3 partners? Karim, Rahman, Nawal. Karim, Rahman and Nawal. So decided to share equally. It means new ratio is equal 1/3, 1/3, 1/3. But old ratio was 5:3:2. So 5:10, 3:10, 2:10. अब ये 10 है, ऊपर 3 है. So what you can do? Multiply with 10 and 10. So 10 by 30. It will be 10 by 30. And here also it will be 10 by 30. नीचे 10 है तो into 3 by 3 कर दो, तो 15 by 30, 3 3s are 9 by 30, and here 2 3s are 6 by 30, and difference निकालो. So 10 minus 15, so it is minus 5 by 30. 10 minus 9, 1 by 30. 10 minus 6, it is 4 by 30. So पता चल गया कि ये नेगेटिव वाला है, that is sacrificing, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे. और ये दो पॉजिटिव वाले गेन हैं, इनको हम डेबिट कर देंगे. सो आवर एंट्री इज वेरी सिंपल. आर और एन को डेबिट करेंगे. सो आई विल राइट आर, रहमान का कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड नवल्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहमान का कैपिटल अकाउंट. Narration will be being goodwill adjusted on change in ratio. Change in ratio में हमने goodwill adjust कर लिया. Let's see कितना है. 1 by 30, 4 by 30. R और N. 1 by 30, 4 by 30. और इसका है 5 by 30 of total goodwill का amount. Total goodwill we already know, which is 3 lakhs. So here I will write 3 lakhs. Three lakhs. So if I divide with 30 to 10,000, 10,000 into 1, 10,000 into 4, and here 10,000 into 5, 50,000. Okay, so this entry is for goodwill. It is for goodwill. और इस एंट्री की इफेक्ट हम देंगे, रहमान को डेबिट करो 10,000, नवल को भी डेबिट करो 40,000. अगेन आई एम रिपीटिंग. एक मिनट, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है.
Karim, Rehman and Naval. So here it is Karim ka account. Here it is Karim's account. So Rehman debit 10, Naval debit 40. कैपिटल अकाउंट में रहमान डेबिट 10, नवल डेबिट 40. लुक हियर, लिखेंगे क्या? टू करीम का अकाउंट. इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं बिकॉज इट विल अफेक्ट टू साइड्स. गुडविल की एंट्री दोनों पार्टनर्स के अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, तीनों के अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, लाइक दिस वे. सो रहमान नवल क्रेडिट, सॉरी रहमान नवल डेबिट किया आपने एंड करीम को क्रेडिट करना है. सो आई विल राइट लाइक दिस 50,000. ओके, लेकिन इसको दो पार्ट में आप कर सकते हो. 10,000 and 40,000. 10,000 by Rahman's account and 40,000 by Naval's account. So याद रखिए ये गुडविल की जर्नल एंट्री की इफेक्ट इस वे से दी जाती है. जो डेबिट है रहमान नवल उसको डेबिट करो, जो क्रेडिट है करीम उसे क्रेडिट करो, जितना अमाउंट है उतना. सो नाउ यू कैन क्लोज दिस अकाउंट. चलिए अब क्वेश्चन खत्म करते हैं. 250 प्लस 30 280 प्लस 10 290, 290 प्लस 50 340, 348 500. चेक करो, आर यू गेटिंग 348 500 and minus 2,500. So are you getting as 346? अंश, मनमीत, विवेक, आदित्य बताओ. Here we have 250, 268, 274, 279, 100. And we will minus 11,500. Two 67 600 and फाइनली इसका टोटल करते हैं 2,12,000, 2,14,000, 2,19,000, 2,22,400 and we will minus 41,000. We will have 400. 2 minus 1 1, 181 400. Okay, so चेक करो कोई मेरे साथ कर रहा है कि नहीं. You can write like 2
बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस को यहाँ पर हम इनर कॉलम में लिखेंगे एंड फिर सब सही है तो टैली हो जाएगा। 246, 267, 600, 181, 400, 6 and 4 10, और बिल 1 7, 5 plus 6 11 plus 8 19, 4 5 6 7, ओके। नाउ एक काम कर सकते हो, नाउ यू कैन ट्राई टू डू totaling by yourself, and if debit and credit is equal, it means that effects are given properly. So I hope you are able to understand. Question थोड़ा lengthy मैंने रखा था so that you get entire clarity. Okay, so it's very easy. I request you to practice the question once again. It's actually very easy. Okay, we'll continue tomorrow. Bye bye. And if you have any doubt, you can let me know. सर आप ये रिकॉर्डिंग शेयर करने वाले हो? किसकी? इसकी रिकॉर्डिंग तो ये शेयर वाले करूंगा। part की? यस यस यस, डेफिनेटली एवरीडे रिकॉर्डिंग शेयर होती है। ओके, चलिए बाय बाय।